Bismillahirrahmanirrahim. So, kiddos, we'll be starting with kinematics theory. I've already uploaded the recordings for the MCQs. You can all access them on my YouTube channel. And this class is going to be for सिंपली फॉर थ्योरी ठीक है। थ्योरी भी आज हो जाएगी तो विद दैट यू शुड बी एबल टू डू दिस चैप्टर। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा बच्चों को तंग करता है। सो 50 MCQs की रिकॉर्डिंग है, 40 MCQs ठीक है। एंड देन देयर इज ऑल्सो गोना बी दिस, तो दिस शुड बी मोर देन इनफ फॉर ऑल ऑफ यू ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर वन गाइस। क्वेश्चन नंबर वन हमारे पास क्या कहते हैं, स्टेट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो याद रखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to the average force exerted ठीक है। rate of change of momentum is equal to the average force exerted। याद रखें इधर F इज इक्वल टू एम ए नहीं लिखना होता ठीक है। बच्चे ए लेवल्स में भी आके ये लिख देते हैं, तो नो, दिस इज नॉट यूर सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ठीक है। वन थिंग दैट आई वांट यू ऑल टू नो इज एक्चुअली F इज इक्वल टू एम ए इधर से ही निकलता है ठीक है। सो एम वी माइनस एम यू ओवर टी, इफ आई टेक एम कॉमन में ले लूँ एंड इट्स गोना बी वी माइनस यू ओवर टी। वी माइनस यू ओवर टी गैस क्या होता है, इट इज इक्वल टू व्हाट जी। वी माइनस यू इट्स इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो देखें ये आपके पास एफ इज इक्वल टू एम ए। तो आपके पास पेरेंट इक्वेशन ये होती है ठीक है, दिस इज कॉल्ड द पेरेंट इक्वेशन, जिससे आपके पास एफ इज इक्वल टू एम ए निकलता है। मेरे ख्याल से आज तक आप लोगों के टीचर्स ने आपको ये नहीं बताया होगा, बट दिस इज हाउ इट, थोड़ा सा छोटा सा ही इसका वो है, हमारे पास इसकी प्रूफ है, इतना कोई बदल नहीं है, मुश्किल नहीं है। A delivery company suggests using a remote controlled aircraft to drop a parcel into a garden of a customer. When the aircraft is vertically above the point P on the ground, it releases the parcel with a velocity that is horizontal and of magnitude 5.4 meters per second. ठीक है? The path of the parcel is shown in figure 2.1. The parcel takes a time of 0.81 seconds after its release to reach point Q on the horizontal ground. Assume that the air resistance is negligible. On figure 2.1, draw an arrow from point X. अच्छा, इधर से हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट होता है ठीक है। अच्छा, on figure 8 2.1, draw an arrow from point X to show the direction of the acceleration of the parcel it is at that point. तो क्या होगा जी, एक्सेलरेशन हमारे पास किस डायरेक्शन में होती है। यू ऑल नीड टू बी वेरी वेरी क्विक, ओके, इट्स ऑलवेज गोना बी डाउन। व्हाई इज इट गोना बी डाउन, याद रखें हमेशा हमेशा हमारे पास एट एनी गिवन पॉइंट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन इन आवर कोर्स देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन एंड दैट इज डाउनवर्ड ठीक है, जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, हॉरिजॉन्टली हमारे पास नहीं होती। डिटरमिन द हाइट एच ऑफ द पार्सल अबव द ग्राउंड when it is released. So now over here you always need to note down which quantities do you have. I have the initial speed. This is u is equal to 5.4, and this is also the speed, and this is also the horizontal speed. Why? Because at this position we know that the vertical velocity does not exist. It is equal to zero. So all of this velocity is actually your horizontal velocity. I hope you guys understand this point. Okay, at the top there is no vertical velocity. There's only horizontal velocity. So this 5.4 is completely horizontal velocity. So your vertical velocity is going to be equal to zero. Okay. Then we also have the time. The time taken for this motion is 0.81 seconds. This is pretty simple. We have to determine the height, right? So S is equal to ut plus 1 by 2 at square. So S is going to be equal to 0 into t. So I'm just going to eliminate this. I do not need to write it down. Plus 1 by 2 into 9.81 into t square. Now t is going to be equal to 0.81 square. So what's the answer? The answer is going to be 3.2 meter. Clear? समझ आ गई है? Very basic, very simple, okay? Why can't you use the horizontal initial speed?
We do not need that. And to use that, we would need the, if we had the distance d, if it was on, if we had the distance d, we could use it. And we could just do speed is equal to distance over time. But we do not. If you're talking about the vertical motion, we take the vertical velocity. Remember that. That's like a very simple rule. If you're using the vertical motion, if you're, solving the question using the vertical motion, you always take the vertical velocity. Calculate the horizontal distance d between P and Q. So next question वही था. So याद रखें guys, for distance d, for the range, we also call this r. We denote it using a r, capital R, that is your range. This is speed is equal to distance over time. Distance is equal to speed into time. So what's the speed? The speed was 5.5, 5.4. And what's the total time taken? 0.81. So इसका आंसर हमारा 4.4 मीटर आ जाएगा. ठीक है, सिंपली अ वेरी इजी क्वेश्चन. और हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए एस इज इक्वल टू वी यूज कर दिया. अब displacement is equal to velocity into time. Correct. And with that, we are done with question number one. Is this question clear? अच्छा guys, एक मैं आज आप लोगों को टिप देता हूँ, and this tip is something which 90% of you might have never used. And this is something that I used in my O levels as well, and I also use this in my A levels. And I feel like the only reason I have the grades I have is because of this, okay? Always remember, whenever you're doing MCQs, whenever you're doing theory and you mess up a question, आपसे क्वेश्चन गलत हो जाता है, and then later on you are able to solve that question, or you look at the marking scheme और आपको नजर आ जाता है यार ये इस तरीके से करना था. Always note that down. Before exams, what I used to do is one day before exams, I would never study the course. I would never study past papers. You know what would I study? I would study all those points that I wrote down. कि मैंने सवाल गलत क्यों किए थे. देखिए, if I'm able to do a question now, I can do that a month later as well. ठीक है, hopefully. तो कहने का मकसद ये है, जो मगर जो मेरे से क्वेश्चन गलत हुए थे, they were, I wasn't able to do them because of a reason, right? उस वजह से आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि आप लोग हमेशा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता, मेक अ सेपरेट नोटबुक एंड उस पर लिखा करें, पॉइंट्स लिखा करें कि यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई वुड हैव टू डू दिस, आई वुड हैव टू डू दिस. ठीक है, वेरी सिंपल बट वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव. इज दिस क्लियर? एंड इज क्वेश्चन नंबर वन क्लियर? यू ऑल हैव टू से यस बाय द वे. व्हाई डू यू ऑलवेज फॉरगेट? ओके, देन क्वेश्चन नंबर टू. Figure 2.1 shows the velocity time graph for an object moving in a straight line. Determine an expression in terms of u, v, and t for the area under the graph. Okay, so basically, this is a trapezium, area under the graph. So for a trapezium, 1 by 2 into u plus v into distance t. U plus v over 2. Very basic, very simple. State the name of the quantity represented by the area under the graph. Which quantity is represented over here? Area under the graph. It's a velocity time graph. Displacement. Good job. Remember, the answer is displacement and not distance. If you write distance, you won't get marks. Then, oh, my favorite question. A ball is kicked with a velocity of 15 meters per second at an angle of 60 degrees to the horizontal ground. सही है? The ball then strikes a vertical wall at an instant when the path of the ball becomes horizontal, as shown in figure 2.2. Then you have the path of the ball, you have the velocity, and the vertical wall. Okay? By considering the vertical motion of the ball, calculate the time it takes to reach the wall. Very simple. So we have to calculate the time it takes to reach the ball. And this is, again, this is the maximum point. ठीक है? This is point number two. जो जो मेरे students हैं उनको पता है कि I label this as point number one, this is two, and then hypothetically we would have a point number three over here. Azara, just write your query down. Acha. Now we know that the speed is 15 meters per second and the angle is 60. So we're just going to write this down. My speed is 15. My vertical speed is going to be 15 sine 60, right? Because we have to use the vertical motion. This is also a hint, and there's only one way to do this. You have to use the vertical motion. ठीक है? वैसे उन्होंने अगर लिख के हम पे कोई आसान नहीं किया हुआ, बट चले.
So the vertical motion is gonna be equal to, can someone tell me what's the answer for this? 15 sin 30 60, इसका क्या आंसर आता है? 13, ठीक है। Now this is 13 meters, this is my vertical velocity. Now we all know that we have this formula, v is equal to vv over g. What does this formula represent? T is equal to vv over g. This is the formula for time taken to reach maximum height. ये फॉर्मूला आप सबको आना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा, बना अगर आपको ये नहीं भी आता, पहले मैं इससे आपको सॉल्व करवा देता हूँ। 13 over 9.81 and the answer is gonna be 1.3. So we know that our answer is 1.3, but अगर आपको ये नहीं भी आता, you can do this. कैसे? A is equal to V minus U over T. I'm gonna take my time, I'm gonna explain each question in detail, ठीक है। I want you all to really understand. आपको shortcut method भी आना चाहिए, and you should know how to do this question the long way as well. Zara, it's very simple. Whenever you get, whenever, देखें, वर्टिकल के लिए हमेशा आप लोगों ने साइन यूज करना है और हॉरिजॉन्टल के लिए हमेशा कॉस यूज करना है, ठीक है। यू डोंट नो अबाउट दिस फॉर्मूला, अभी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। नाउ दिस फॉर्मूला, व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड ओवर हियर इज, वी आर ट्राइंग टू फाइंड द टाइम इट टेक्स टू रीच मैक्सिमम हाइट। अच्छा, सो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर टी। आई एम गोना मेक टी द सब्जेक्ट, टी इज इक्वल टू वी माइनस यू ओवर ए। अच्छा, अब मुझे बताएं व्हाट इज द वर्टिकल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। वर्टिकल वेलोसिटी एट दिस पॉइंट नंबर टू, पोजीशन नंबर टू क्या होती है? जीरो। एंड व्हाट्स द इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? v sin theta. So u is equal to v sin theta and v is equal to, final speed is going to be equal to 0. I'm just going to substitute these values here. So 0 minus v sin theta over a. Now a, because the ball is moving upwards, it's going to be minus g. This is going to cancel out. T is equal to v sine theta over g. So whenever you're finding the time it takes to reach maximum height, you can just use this formula, v sine theta over g. अगर आपके टीचर ने आप लोगों को इस तरीके से नहीं करवाया हुआ, तो आई एम वेरी सॉरी, आई फील सॉरी फॉर यू गाइस, ठीक है। दिस इज लाइक द वेरी बेसिक। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, कहते हैं, what do you call that, demotivate नहीं कर रहा, but this is like a very basic thing you all should know. And when I say something like that, that does not mean कि you do not ask questions, ठीक है। ये तो मैं एज अ टीचर हूँ ना, एक टीचर को आदत होती है बोलने की, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। सो टी इज इक्वल टू वी साइन थीटा ओवर जी, और वी कैन राइट इट एज टी इज इक्वल टू वी ओवर जी, वर्टिकल वेलोसिटी। सही है, वी विल ऑलवेज टेक जी नेगेटिव, या depends on, no, 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 Shifa, we do not always take G negative. It depends. If the object is moving upwards, we take it negative. If the object is moving downwards, we take it positive. आप लोग, टीचर्स ने आप लोग एक बात की होगी कि जी हमेशा नेगेटिव होता है और हम इसको नहीं लेते, एंड दिस एंड दैट, राइट? अ लॉट ऑफ टीचर्स, एंड देन दे ऑल्सो प्रूव दैट टू यू, आई अंडरस्टैंड दैट, बट वो आपके लेवल पे नहीं होता। जी एक्चुअली हम लोग लेते हैं हमेशा नेगेटिव ही है, बट इन आर कोर्स एट दिस लेवल वो इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स नहीं होती। सो व्हेन इट्स गोइंग अप, व्हेन इट्स गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो वी गोना टेक इट एज नेगेटिव, एंड व्हेन इट गोज, व्हेन इट्स फॉलिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है, इट्स पैरेलल टू ग्रेविटी, तो हम हमेशा बोल लेते हैं। नहीं, शिफा नहीं लेंगे, नीचे वाले को आप पॉजिटिव लेंगे। ओके, वेरी सिंपल। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो टी, अच्छा ये फॉर्मूला क्लियर है, ये सबको उसका प्रूफ भी आ गया। इसका प्रूफ तो कुछ है नहीं, जस्ट लिटरी वन लाइन, यू जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। इज दिस क्लियर? मुझे बताएं, जल्दी से जल्दी से। आई नीड ए यस सर फ्रॉम एवरीवन दैट्स हियर इन द क्लास। अगर आप लोग डेड डेड होंगे गैस, तो बिलीव मी, आई एम जस्ट गोना एंड दिस क्लास इफ यू आर लाइक लेजी। बस मुझे लेजी एसेस को पढ़ाने का कोई दिल नहीं करता, ठीक है। बी एक्टिव, आस्क क्वेश्चंस, दैट इज हाउ आई लाइक माई क्लासेस। Okay, explain why the horizontal component of the velocity of the ball remains constant as it moves towards the wall. Why does it remain constant? Why does it remain constant? Because हमारे पास acceleration is equal to zero. Why is acceleration equal to zero? अच्छा, विशाल का जो आंसर है, that is wrong.
दैट इज द आंसर बट दैट आंसर इज रॉन्ग। कोई मुझे बता सकते हैं क्यों? विशाल, योर आंसर इज करेक्ट बट इट इज रॉन्ग। योर कॉन्सेप्ट इज करेक्ट बट योर आंसर इज रॉन्ग। हाँ, दिस इज हाउ आई शुड फ्रेज इट। कैन समवन लेट मी नो व्हाई? सही है, रिजल्टेंट फोर्स ना हो ना। मैं, माई क्वेश्चन इज व्हाई इज विशाल आंसर करेक्ट? व्हाई इज द कॉन्सेप्ट करेक्ट बट व्हाई इज द आंसर रॉन्ग? दैट इज माई क्वेश्चन हियर। एनीवन? देखें, ये चीज होती है। नाउ यू वुड थिंक कि आपने सही आंसर लिखा है बट आंसर गलत है। पूरा की भी बात नहीं है। देखिए, द क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल रिमेन्स कांस्टेंट। द क्वेश्चन इज व्हाई डज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट? वेलोसिटी कब रिमेन कांस्टेंट होती है जी? जब हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं होती। नहीं, एक्सेलरेशन क्यों नहीं होती? जब फोर्स नहीं होता। देखिए, द क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग अबाउट एयर रेजिस्टेंस, इट्स नॉट आस्किंग अबाउट any type of force. The answer is simply the force in the horizontal direction is zero. If he writes the air resistance is zero, no, that's not the answer. The resultant force in the horizontal direction is zero, meaning the force in the horizontal direction is zero. नहीं ना फिजान, आपने जो आंसर लिखा है वो तो टर्मिनल वेलोसिटी का आप कह रहे हैं, वो तो बिल्कुल गलत है। एक है आपका भी आंसर, चेंज अबाउट डाउनवर्ड, बिल्कुल गलत है। वेरी सिंपल, द आंसर इज सिंपली द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। क्योंकि क्वेश्चन उन्होंने वेलोसिटी का पूछा कि वेलोसिटी चेंज क्यों नहीं हो रही। ठीक है, वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि फोर्स ही नहीं है, बस ये आंसर है। आपने ये नहीं लिखना कि कौन सी टाइप ऑफ फोर्स नहीं है हमारे पास। यू जस्ट राइट द फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज जीरो। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? देखिए, बहुत छोटी सी चीज होती है गाइस, वेरी स्मॉल स्टफ, बट show that the ball strikes the wall with a horizontal velocity of 7.5। तो ये तो बहुत सिंपल है। हमारे पास स्पीड थी 15, एंगल हमारे पास था 60। तो 15 cos 60, किसी ने पूछा था, मुझे समझ नहीं आ रही है। देखिए आ गया क्वेश्चन। दिस इज गोना बी 7.5 because cos 60 इज इक्वल टू, cos 60 हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, तो 15 इंटू 1/2 इज 7.5। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अच्छा guys, इसके बाद we'll have 3 classes and I'm gonna give you guys 3 worksheets and we're gonna solve those worksheets as well, okay, later on. But that depends कि if you guys are active during this class and if I see more students in the next class। ठीक है, क्योंकि अगर मैं जब फ्री वाली क्लास रखता हूँ ओपन फॉर ऑल, तो आई वांट के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, फिर गपशप लगती है ना। आई एंजॉय क्लासेस जिसमें बच्चे ज़्यादा हों। क्वेश्चन नंबर 3, ये इधर 2 लिखा हुआ है बट वी आर एक्चुअली ऑन क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? लॉ ऑफ इनर्शिया। याद रखिए, लॉ ऑफ इनर्शिया इन द फर्स्ट मोमेंट दोनों एक ही चीज है। सही है, लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है? अ बॉडी एट रेस्ट और कांस्टेंट वेलोसिटी विल रिमेन टू डू सो unless upon acted upon by an external force। ठीक है, a body at rest or constant velocity will remain to do so unless acted upon by an external force। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट इधर भी बच्चे गलत कर देते हैं। ओहो हो, एक चीज मुझे याद आई गाइस बिफोर वी मूव अहेड। मुझे कोई आप में से न्यूटन का थर्ड लॉ एक्सप्लेन कर सकता है? एनीवन? जिस बंदे ने करेक्ट डेफिनेशन, जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसकी, ठीक है, वो मुझे चैट बॉक्स में लिख देना गाइस, मेरी तरफ से उसको 1000 रुपए इनाम है। मुझे सिर्फ ये कोई न्यूटन का थर्ड लॉ इधर चैट में लिख दे, या अपना माइक ओपन करके मुझे एक्सप्लेन कर दे न्यूटन थर्ड लॉ, जिसने सही तरीके से किया, उसको मेरी तरफ से 1000 रुपये इनाम है आज। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। नहीं, एक ही नहीं है गलत।
अच्छा, गलत से ये मतलब नहीं है दिस इज नॉट करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट बट दिस इज नॉट द कंप्लीट डेफिनेशन। विशाल, योर आंसर इज करेक्ट बट दिस इज नॉट द आंसर दैट आई वांट। ये शायद किसी मेरे स्टूडेंट को ये चीज याद हो। फैजान आपका। गाइस एक आंसर ठीक है ये, एंड दिस इज वेरी रेयर। फैजान का आंसर ठीक है। ये चीज आज तक 90%, अभी देखिए कितने बच्चों ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से 6 बच्चों ने जवाब दिए। 6 में से सिर्फ एक का आंसर ठीक है, दैट्स फैजान। पहले तो सब फैजान के लिए गाइस क्लैपिंग करें, ठीक है? मेरे ख्याल से मैं अगर क्लैपिंग करूंगा यहाँ वो एक इमोजी भी आ जाएगा क्लैपिंग का। वो ख्याल से पहले खुद खुद से वो इमोजी आ जाता होता था, ठीक है? हाँ वो देखें आ गया गाइस। देखिए फैजान का आंसर क्या है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होती है, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। फिर दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, एंड देन द लास्ट पॉइंट, दे आर द सेम टाइप। एवरी स्टूडेंट एवरी वन मिसेस द सेम टाइप वाला पॉइंट, कि अगर ग्रेविटेशनल है तो ग्रेविटेशनल है, अगर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स है तो फ्रिक्शनल फोर्स है। Isn't that just the criteria? विशाल, दैट इज पार्ट ऑफ द व्हाट डू यू कॉल द लॉ। मैंने वही कहा है, पेपर में तो आप नहीं लिखते ये चीज, बट मैंने माय डेफिनेशन वाज कि एक्चुअली होता क्या है। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, देखिए टू ऑब्जेक्ट्स का लिखा है एंड द सेम टाइप, ये दो चीजें भूल जाते हैं। एंड सेम टाइप तो सब भूल जाते हैं, ये जब आपका पेपर में आता है आपने ये नहीं लिखना होता, ठीक है? ये नहीं है कि आपने ये पेपर में 1 मार्क का आता है तो यू हैव टू राइट ऑल ऑफ दिस, बट दिस इज यू नीड टू नो दिस कि ग्रेविटेशनल के ऑपोजिट ग्रेविटेशनल होती है। अभी मैं ओ लेवल की क्लासेस से पहले ले रहा था, उसमें मैं बच्चों को समझा रहा था कि आधे से ज्यादा बच्चों को, अभी मैं आप में से भी मैं एक एमसीक्यू दिखाऊं ना तो आप गलत करेंगे। वेट का ऑपोजिट कौन सा, रिएक्शन फोर्स क्या होती है वेट की? इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन अर्थ, अर्थ एक एक्शन फोर्स वेट है, व्हाट्स द रिएक्शन फोर्स टू दिस? दैट्स द एक्शन फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम अर्थ इज द एक्शन फोर्स। वेट वही है ना, ग्रेविटी जो मुझे नीचे खींची है। इसकी मुझे कोई रिएक्शन फोर्स बता सकता है? ओए ज़ारा ये क्या कह रही है, रेजिस्टेंस किधर से आ गई बच्चे, क्या बात कर रही हैं? सकीना रिजवी, गुड जॉब रिजवी। ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम यू, देखें अगर मैं अर्थ पे खड़ा हूं और अर्थ को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, अर्थ मुझे अपनी तरफ खींच रही है ना, तो जो इसका रिएक्शन होगा दैट्स आल्सो गोना बी ग्रेविटेशनल, मैं अर्थ को अपनी तरफ खींचूंगा। समझ आइए अब? दिस दिस गाइस, ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आनी चाहिए आप लोग। इफ यू वांट दैट ए, यू नीड टू नो दिस सेम टाइप ऑफ फोर्स। अगर दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं, एक टेबल है, टेबल पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है एन, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट्स गोना बी द रिएक्शन फोर्स? ये टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रहा है, व्हाट्स गोना बी द रिएक्शन फोर्स, बताएं जल्दी से। कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बाय टेबल, विशाल वो तो एक्शन हो गया ना। यस, इसका जो उल्टा होगा कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑन द टेबल, उल्टा अब इसका, इधर आपके पास ये एन होगा, ठीक है? ये देखें छोटी छोटी बातें। अब यही क्वेश्चन में चेंज कर दूं, ये क्वेश्चन में मैं लिख दूं, ये डब्ल्यू लिख दूं, अब मुझे बताएं क्या होगा? ये एक्शन है, रिएक्शन फोर्स क्या है? व्हाट्स द रिएक्शन फोर्स? वेट डब्ल्यू ऑफ द बुक, ये एक्शन है गाइस, एक्शन वाला तो आप रिपीट ना करें ना। ग्रेविटेशनल फोर्स बाय बुक ऑन द अर्थ, करेक्ट। जो ये बुक दुनिया को अपने पास खींच रही है, दैट्स गोना बी द रिएक्शन फोर्स। गाइस ये चीज है, ये चीज, ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ठीक है? कि सेम क्वेश्चन सेम थिंग, बट अगर वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट की बात करेंगे तो आप नॉर्मल कॉन्टैक्ट की करेंगी, अगर वो वेट की करेंगी तो आप वेट की बात करेंगी। अब ये बात क्लियर हो गई है सबको? आई नीड अ यस फ्रॉम एवरीवन।
एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक और एग्जाम्पल करते हैं। चलो बस काफ़ी है, आगे जाते हैं, क्वेश्चंस भी करते हैं। एक में आपसे गाइस क्वेश्चन है मेरा। सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों को आपके टीचर्स ने पढ़ाई है, राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ाई है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स के दो चेंजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द टू फैक्टर्स दैट, थ्री फैक्टर्स एक्चुअली दैट अफेक्ट योर सेंट्रीपिटल फोर्स? जरा मुझे कोई लिस्ट डाउन करके बताइए जल्दी से। वन, टू एंड थ्री। देयर थ्री फैक्टर्स। डायरेक्शन फोर्स नहीं, वेलोसिटी फोर्स एंड एक्सेलरेशन नहीं। कौन सी चीज, तीन चीजें अफेक्ट करती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स को? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट। दूसरा, करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड नहीं होती, वेलोसिटी होती है। एंड द रेडियस, करेक्ट। ये तीन चीजें गाइस आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स को अफेक्ट करती है। फॉर्मूला फॉर्मूला आप A2 में पढ़ते होते हैं, mv² / r, ठीक है। अगेन जस्ट मुझे आया, यूजली टीचर्स या स्टूडेंट्स ये चीज मिस कर देते, छोटी छोटी बातें होती हैं गाइस, किसी भी MCQ, किसी भी थ्योरी में आ सकती है। खैर, यूज फिगर यूज फिगर 2.2 टू डिटरमिन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्कीयर फ्रॉम टाइम t is equal to 0 and time t is equal to 5। तो गाइस 18 आ जाएगा। आई बिलीव आई डू नॉट नीड टू डू दिस, इट्स वेरी सिंपल। यू कैन जस्ट डिवाइड इट अप, इसको इधर डिवाइड कर दें। इट्स गोना बी 1/2 इंटू 2 प्लस 4.4 प्लस 4.4 इंटू 2, जिसका आंसर आपके पास 18 मीटर आता है, ठीक है। दिस इज पार्ट ऑफ योर A levels एज वेल, शाल। Use figure 2.2 to show that the acceleration of the skier is 0.80 meters per second square at time t is equal to 2। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, कितनी है? 0.80 गाइस, वी जस्ट नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट। y2 minus y1 over x2 minus x1। वन थिंग दैट यू नीड टू, ओ चलिए ये करते हैं। मुझे दो पॉइंट्स बताएं, ये मैं इसको कर रहा हूँ। इस स्ट्रेट लाइन का आपने 8.2 जो है ना, मतलब इस टाइप पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस पे कैसे आप मुझे दो पॉइंट्स निकाल के दें, आप सब लोग, सबके लिए एक टास्क है। अच्छा, एक ने कहा है 3 and 1.1, है 3 और 1.1 कैसे हो सकते हैं? शायद वो 1.1 and 3 होता है। पहले याद रखें, आप एक्स एक्सिस लिखते होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पहले आता है, वाई कोऑर्डिनेट बाद में आता है। अच्छा, आप राइज ओवर रन कर रहे हैं, ठीक है। सही है विशाल। स्टिल अगेन, मतलब यू वुड यूज सम 2 पॉइंट्स, राइट, टू फाइंड द ग्रेडियंट। 2.9 and 4, ओके, 2.9 and 4, ठीक है। 2 and 3.4, 2 and, अच्छा, इधर व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू गाइस, याद रखें, याद रखें, याद रखें, मोस्ट ऑफ द लाइन की बात नहीं होती। यू कैन टेक एनी पॉइंट, you have to take 2 points, right? But remember, one point should be ये जो 2 seconds पे, because you have to show। जब आप शो कर रहे हो तो आपने एक पॉइंट नहीं, सकीना आपके पॉइंट्स गलत है, मैं आपको वही बता रहा था। देखिए अगेन, समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी बात है, बट सब गलत कर देते हैं। देखिए, जब उन्होंने आपको कहा है कि यू हैव टू शो एट 2, तो यू हैव टू टेक द कोऑर्डिनेट्स एट 2। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू गाइस गेट दैट? पहले, आपको पता है, अब तो ये चेंज इन रूल चेंज कर दिए। पहले होता था अगर आप ये पॉइंट ना यूज करें तो यू वुड नॉट गेट अ मार्क, यू नो दैट। ये एक्चुअली था रूल, अब इन्हें चेंज कर दिए, देर वेरी लीनियंट विद इट। बट अगेन, यू शुड नॉट टेस्ट देम, मतलब क्यों करना चाहते हैं आप उनको टेस्ट, ठीक है। तो यू हैव टू यूज दिस पॉइंट, क्योंकि उन्हें शो किया हुआ है, तो उस पॉइंट पे तो आपने दिखाना है। तो मेरे ख्याल से अब इस पॉइंट पे हम लें तो हमारे पास 2 पे हमारे पास क्या बनता है? 3.6, 2 and 3.6 एक पॉइंट बन गया। और दूसरा हम लोग 0 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो इट्स गोना बी इक्वल टू 1.6/2 राइज ओवर रन। अगर मैं करूँ ना, राइज ओवर रन इज सिंपली गोना बी 1.6/2, जो 0.8। बेसिकली मैंने क्या किया, अगर किसी को नहीं समझाया, 3.6 - 2/2 - 0 विच इज़ 1.8/2 विच इज़
1.6, sorry, not 1.8, which is equal to 0.8. समझ आ गई शहजादों एंड शहजादियों? इज दिस क्लियर? अगेन गाइस, छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे आपका ए आता है या ए जाता है। ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों में से सब ने ये क्वेश्चन सही कर लेना था, पर अगर आप ये यूज ना करते आपका शो ही ना होता। ठीक है। तो यू हैव टू शो। ये छोटी छोटी बातें होती हैं गाइस, इससे आपका ग्रेड आता है, याद रखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ये उल्टी चल रही है थोड़ी सी खराब, बट a toy train moves along a straight section of a track. Figure 1.1 shows the variation with time t of the distance d moved by the train. Describe qualitatively the motion of the train between t is equal to 0 and t is equal to 1.0 seconds. ये तो बड़ा सिंपल सा है। दिस इज, ये ठीक है। दिस इज योर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ हमारे पास जो ग्रेडियंट होगा, ग्रेडियंट इज इक्वल टू आवर स्पीड। ठीक है। एम इज इक्वल टू स्पीड। तो हमारे पास ये क्या है, डिक्रीजिंग ग्रेडियंट का ग्राफ है। ठीक है। तो विल जस्ट राइट दैट द स्पीड इज डिक्रीजिंग। द स्पीड decreases as it decelerates. Simple dimple. No, you would not lose your marks, but the correct answer is speed. Okay, the correct answer is speed, but velocity भी you would not lose a mark. Determine the speed of the train at time t is equal to 2. Again guys देखें, अब वही वाली हमारे पास चीज़ आई, तो हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1, एंड वील टेक दिस वाला पॉइंट। ठीक है। जो भी होता है वो आप लोग आगे देख लीजिएगा, इट्स वेरी सिंपल। अब मैंने एक बार करवा दिया, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.24। Oh, a very interesting question. The straight section of a track in B is part of a loop of a track shown. The train completes exactly one lap of a loop. State and explain the average velocity of the train over one complete lap. So over one complete lap, what's going to be the velocity? Good job. The answer is the average velocity is zero. Why? Because the displacement is zero. अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इट्स रैंडम। On a circle, what is the maximum displacement equal to? एक सर्कल में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी हो सकती है? Kiddo's maximum displacement. Yes, it is equal to the diameter. एक पॉइंट से किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम जो होता है वो हमारे पास डायमीटर होता है, किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक। अक्लमंद है, थोड़ा दिमाग है माशाल्लाह से आप लोगों में, मैंने नोटिस किया है। थोड़ा क्रैक्ट है, बट कहीं ना कहीं दिमाग अभी भी बचा हुआ है बेचारों में। वेयर आर यू गाइस फ्रॉम? मुझे अपना स्कूल एंड सिटी तो बताएं, मुझे बड़ा मज़ा आता है इस चीज़ पे। गाइस अगर 20 से कम बच्चे हुए ना क्लास में, भी अगर कोई और किसी ने भी लीव किया, मैं कल वाली क्लास नहीं लूंगा। बच्चे कम हो, क्लास लेने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ठीक है। कराची यूजर्स, कराची प्राइवेट, कराची कराची वो इतना कराची, बिकनॉज पोटोहार पोटोहार। Credo, Karachi, Karachi. Oh, there's so much Karachi over here. Karachi, Karachi, Karachi. LGS 101, Credo, Karachi. ICAS. Nice, 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 nice. चलें, moving forward. Question number 4. The ball is thrown with speed u from a height of 1.5. The ball then hits the ground with a speed of 8.7
Assume that the air resistance is negligible, calculate speed u। ठीक है, स्पीड यू हम लोगों ने किडोस फाइंड करनी है। हमारे पास हमने इनिशियल फाइंड करनी है, फाइनल हमें दी हुई है, एस भी हमें दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 a s। वी स्क्वायर विच इज़ आर फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 8.7 स्क्वायर, यू स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 9.81 इंटू एस विच इज़ 1.5। इसका आंसर मुझे आज भी याद है, मैंने क्वेश्चन इतना करवा दिया। 6.4 आंसर है, 6.8 इसका आंसर है। 6.8 है इसका आंसर। अब देखिए, आप लोग पूछेंगे सर हमें कैसे पता हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। याद रखिएगा, इस सब फॉर्मूलाज में ए हमारे पास हमेशा गिवन है, ठीक है। तो वी आर लेफ्ट विथ थ्री थिंग्स, उनमें से तीन चीज़ें हमेशा लिख लिया करें। देखिए जैसे इधर मेरे पास एस भी था, मेरे पास यू भी था। अब ए एस यू के साथ दो फार्मूलाज भी बनते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a t स्क्वायर, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। द क्वेश्चन इज आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, आप लोगों ने। अच्छा आपके पास वी गिवन है, अच्छा ए एस और वी के साथ तो एक ही बनता है, वो मैंने यू गलती से लिख दिया। आपका फॉर्मूला ही पॉसिबल, एक ही फॉर्मूला पॉसिबल है और वो यही है। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? Then state how Newton's third law applies to the collision between the ball and the ground। तो between the ball and the ground guys कैसे होती है collision? Very important। The force exerted by the ball on the ground is equal and opposite to the force exerted by the ground on the ball। ये तो बड़ा सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था। कभी कभार आसान आसान भी आ जाते हैं, इतने मुश्किल नहीं है, बिलीव मी। ये आपके सारे पास पेपर के क्वेश्चंस हैं। अच्छा ये बड़े मज़े का सवाल है, टर्मिनल वेलोसिटी वाला सवाल। फॉर सम रीज़न ना बच्चों का हमेशा इसके, अगर 3 मार्क का सवाल है तो तीन पूरे नहीं आते, ठीक है। हमेशा कम आएंगे। अब कितने कम आएंगे वो डिपेंड करता है, बट कम ज़रूर आएंगे, ठीक है। सो डिफाइन एक्सेलरेशन गाइस, व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है। अच्छा guys, इस क्वेश्चन के बाद हम 5 मिनट गपशप लगाएंगे, ठीक है। आई रियली नीड सम गुड रिकमेंडेशन फॉर शोज ऑन नेटफ्लिक्स। मैंने स्टार्ट करना है, मैं आजकल फारिग हूँ। या तो गैस मैं शोज ले सकता हूँ, या तो मैं आप लोगों के साथ फ्री की क्लासेस ले सकता हूँ, ठीक है। आई हैव लाइक टू ऑप्शंस रात के वक्त, क्योंकि मैं कब तक फ्री हूँ, मैं फ्राइडे की रात तक गाइस फ्री हूँ, ठीक है। मतलब आई हैव 3 डेज। गेम ऑफ थ्रोन्स मैंने देखा हुआ है, बट मैं क्लासेस ले लूँगा, आई हैव नो प्रॉब्लम विद क्लासेस। बट आई नीड मिनिमम 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। देन इफ यू गाइज कैन अपने दोस्तों को लाएं बिठाएं, पढ़ ही लें ना। लेकिन मुझे मज़ा तब आता है जब आप लोग एक्टिव हो। इफ़ यू गाइज आर बोरिंग एंड यू गाइज डू नॉट यूज़ द कमेंट बॉक्स, सही है, तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ाने का। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। विशाल इतना दिल का जोर नहीं है, बस क्लास कर लेंगे गाइज, भेज दिया करें सबको, ठीक है। मतलब मैं अभी आज भी शायद रात को 10 बजे या 11 बजे मैं क्लास रख लूँ। मैं फारिग हूँ, मैं मतलब फ्राइडे की रात 11 बजे तक गाइज आई एम फ्री, तो आई कैन टेक एज मेनी क्लासेस एज यू वांट, ठीक है, इन द नेक्स्ट 3 डेज। मतलब ये अब आप लोगों पे होता है कि आप लोग उस पे मेरे से कितना फ़ायदा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बट यू गाइज नीड टू बी वेरी एक्टिव। एज लॉन्ग एज यू गाइज आर एक्टिव आई रियली डोंट केयर। मुझे एक्चुअली पता है टीचिंग में मज़ा आता है। दिस इज यू ऑल नो दैट आई एम नॉट, मतलब आई डू दिस मज़े से, ठीक है। पता नहीं आप लोगों को मेरी स्टोरी पता है नहीं पता, बट आई टीच मज़े में, ठीक है। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स तो कितना आसान है, ठीक है। आप पढ़ा दें फ्रॉम 9 ऑनवर्ड। नहीं अलमास, यू डोंट टेल मी व्हेन आई टीच यू, आई टेल यू व्हेन आई टीच यू, ठीक है। मैं बताऊंगा, मैं इस टाइम के बाद पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों ने फिर आना है, ठीक है। समझ आइए, इट्स द अदर वे राउंड। ये मेरी बात याद रखें बच्चों, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, ठीक है। अच्छे बच्चे हैं सर, डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स करें प्लीज़। वो तो बहुत आसान नहीं है। नहीं मैं मजाक, मतलब कैसे, अभी तो मैं गपशप लगा भी नहीं रहा, अभी मैं कह रहा हूँ
थोड़ा पढ़ लें। खैर अभी ज़रा ये करते हैं, फिर आगे गपशप लगाते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आगे, a stone falls vertically from the top of a cliff. Figure 2.1 shows the variation with time t of the velocity v of the stone. Explain with reference of forces acting on the stone the shape of the curve in figure 2.1. I want you all to write type this answer in the chat box. ये टर्मिनल वेलोसिटी का क्वेश्चन है। ज़रा मुझे डू नॉट अनोट प्लीज़ यशा, ये ज़रा गाइस आप लोग करें। आई वांट यू गाइस टू टाइप द आंसर, इट्स सिंपली टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी इतना कोई मुश्किल होना नहीं चाहिए, ज़रा बताएं सिर्फ लिख के। मैं आप लोगों को बताता हूँ आप में से कितने ये कर्व देख लें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर लिखना है आप लोगों ने। मैंने आपका आंसर भी बता दिया, आंसर लिखना क्या है, बस लिख के ज़रा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताएं। मैं देखूं सही आप लोग किधर खड़े हैं। अच्छा सर मुझे पढ़ने दें। एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग कॉजिंग द रिजल्टेंट फोर्स टू डिक्रीज, कॉजिंग द एक्सेलरेशन टू डिक्रीज ड्यू टू एफ इज इक्वल में एज रिजल्टेंट डिक्रीजेस एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, रिपीटेशन एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टिल इट्स इक्वल टू वेयर देन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स। नहीं, गलत। सही आंसर नहीं है आपका फैजान। नहीं, विशाल। विशल, विशाल। इज इट विशाल और विशल? मतलब विशल, द फर्स्ट वन विशल। बड़ा बड़ा प्यारा नाम है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज मीन द कास्ट ज़ारा बिल्कुल जीरो मार्क्स आपके तो। सिर्फ सिर्फ एक्सेलरेशन, पता नहीं एयर रेजिस्टेंस क्या लिख रही है। रेजिस्टेंस दिस इज टाइम एक्सेलरेशन इक्वल टू वेट कांस्टेंट। हरम आपके भी 3 मार्क्स नहीं है, अभी तक किसी के भी 3 मार्क्स इस क्वेश्चन में नहीं आए। देखें, इतना बेसिक क्वेश्चन है, ओ लेवल से करते आ रहे हैं, एक के भी 3 मार्क्स नहीं है। अच्छा, ऑन 10 सेकेंड जस्ट मीन ह्यूज। आगे गाइस आई वांट मोर आंसर्स एज वेल। तैमूर किधर है? मेरे पुराने स्टूडेंट्स किधर गए? एक तो मेरे वाले बच्चे को फिर जवाब ही नहीं देते। वाओ गाइस वी हैव, बच्चे कौन है? अहद, अलमास, आयशा, ईशल, इशाल, फिजान, फातिमा, फातिमा, फौजान, हरम, महीन, नूर, सादिया, साकिना, शफा, तैमूर, विशल, यशा, यमुना, इजारा, एके। एके आपका पूरा नाम क्या है? एके कौन है? यशा आपको बिल्कुल, मैं आपको 1 मार्क दूंगा, ठीक है। शिफा आपको भी मैं सिर्फ 1 मार्क दूंगा। 2 मार्क अभी तक सिर्फ विशल के आए हैं, ठीक है। फातिमा आपके भी 2 मार्क्स हैं। ज़ारा चैट माइक ओपन करके बोल दें। आई हैव नो प्रॉब्लम। अब गाइस देखिए, यू गाइस आर इन एएस, मतलब इट्स जनवरी एंड यू गाइस कैन नॉट राइट डाउन एन आंसर एक्सप्लेनिंग ए टर्मिनल वेलोसिटी कैसे रीच होती है। अब आप लोगों को पता है इशू क्या होता है? आप लोगों को लगता है आप लोग ये आंसर पेपर में लिख के आए, आपको तो लगता है आपने ठीक लिखा है ना, बिकॉज आप लोगों को लगता है कि यू नो व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी कैसे रीच होती है। बट आप में से किसी को भी, ये क्या है इतना लंबा आंसर? ये ज़रा आपने क्या चैट जीपीटी मारा है? देखिए मेरा शहजादा स्टूडेंट है ना फिर तैमूर। ये देखें गाइस, मतलब मैं अपनी टीचिंग की क्या तारीफ करूं, बट हमारे माशाल्लाह स्टूडेंट देखें, तैमूर खार, परफेक्ट आंसर, मतलब ऑलमोस्ट क्लोज टू परफेक्ट आंसर। देखें पहली बात, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, उसने ग्राफ को रेफरेंस दी है। द स्टोन स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग आफ्टर सम टाइम एयर रेजिस्टेंस टू स्टार्ट, इसमें सिर्फ ये गलत है, आफ्टर सम टाइम नहीं होता, एयर रेजिस्टेंस स्टार्ट्स टू एक्ट एज द स्पीड इंक्रीजेस, ठीक है। बस ये पॉइंट है, उसने जो लिखा है वो भी ठीक है, बट इसकी वर्डिंग कुड हैव बीन बेटर। एट वन पॉइंट द टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स, इसको भी हम दिस इज करेक्ट, बट इसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जरा इजारा का पढ़ लेते हैं, बड़ा लंबा है, तो स्टार्ट होने फिर।
गाइस तैमूर का भी आंसर छोड़े, जारा। परफेक्ट, मतलब एब्सोल्युटली परफेक्ट। तैमूर का तो वाज गुड बट उसमें इशू था। जारा का इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आई एम प्रीटी श्योर दिस वाज चार्ट जीपीटी बाय द वे, बट परफेक्ट। ठीक है। अलमास आपका आंसर किधर है, मिस हो गया। इस पे तो आपको 0 मार्क्स मिलने हैं, अलमास। गाइस आई वांट यू ऑल टू रीड जारा का आंसर। इस आंसर को ना मैं शॉर्ट फॉर्म में करके लिखूंगा, उसने तो बहुत, वो कहते हैं ना, कहानी बना के लिखी हुई है उसने तो। बट अदर देन तैमूर, एंड अदर देन, एक तैमूर को 2 मार्क्स में दूंगा, ठीक है, 3 तैमूर को भी नहीं मिलते। एंड विशल को 2 मार्क्स, बाकी सबके 0 मार्क्स हैं, ठीक है। एंड जारा के 3 मार्क्स। तो दिस वॉज अराउंड 7 8 पीपल दैट अटेम्प्टेड दिस, एंड देखें आप में से सिर्फ एक के 3 मार्क्स आए हैं। अच्छा, इसका आंसर वैसे है बहुत सिंपल, ये भी जो जारा ने लिखा है बहुत लंबा करके लिखा हुआ है। देखिए, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू फोर्सेस, तो आपने बात फोर्सेस की करनी है। द शेप ऑफ द कर्व, शेप ऑफ द कर्व देखें। शेप ऑफ यू, गैस मुझे वो एड शीरन का गाना याद आ गया, आई एम इन लव विद द शेप ऑफ यू। खैर मैं गाने नहीं सुनता, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, आगे क्या होता है गाइज। सबसे पहले गाइज देखें हमारे पास क्या है, कि एज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन, हमें पता है कि उस पर वेट एक्ट करता है। अच्छा, पता है ये भी बात लिखने की जरूरत नहीं होती, मैं आपको बड़ा सिंपल से इसका आंसर लिख के देता हूँ इन्हीं 3 लाइनों में। एज द ऑब्जेक्ट falls down, it accelerates due to weight। ठीक है, पहला, बिल्कुल सिंपल सी बात। As the speed increases, the air resistance increases. The resultant force decreases, due to which acceleration decreases। ठीक है। देखिए मैंने कितने सिंपल वर्डिंग में उसको आप लोगों को बता दिया कि क्या है, पहले ऑब्जेक्ट गिरता है तो एक्सेलरेशन होती है वेट की वजह से। एज द स्पीड इंक्रीजेस, हमारे पास एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। द रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीजेस, ड्यू टू विच एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। एंड आखिरी पॉइंट, व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वेट, एफ नेट इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो। आपने ऐसे नहीं लिखना, आपने रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, ड्यू टू विच एक्सेलरेशन इज जीरो, एंड टर्मिनल वेलोसिटी, इधर ब्रैकेट में लिख दें स्ट्रेट लाइन इज रीच्ड, बस। अब guys, this is a perfect answer. Of course I do not expect an answer from you guys of this sort, of course, क्योंकि मैं तो टीचर हूँ, मैं तो guys सालों से यही एक आंसर लिखता लिखता ना, मुझे तो रट्टा हो गया ना। आप लोगों को भी रट्टा हो जाना चाहिए, बट दिस इज व्हाट द आंसर इज। अब देखिए मेरे आंसर्स अपने आंसर्स को जरा आप कंपेयर करें, कि as the object falls down, it accelerates due to weight. As the speed increases, the air resistance increases. The resultant force decreases, due to which your acceleration decreases. When air resistance is equal to weight, your resultant force is zero, acceleration is zero, and terminal velocity, ये ग्राफ मैंने मेंशन कर दिया जो स्ट्रेट लाइन है, हमने बेसिकली उस स्ट्रेट लाइन को कहना था, ठीक है। और दूसरा ये भी बात है, हम लोगों ने जब इधर लिख दिया कि एक्सेलरेशन डिक्रीजेस, तो ये वाला भी पॉइंट हमारा, ये जो ये कर्व है ये भी उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। सही है। इधर नोट डाउन कर लें आप लोग। एंड यूज फिगर 2.1 टू डिटरमिन द स्पीड ऑफ द स्टोन व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो, तो दे बेसिकली आस्किंग एफ नेट जीरो किधर है जब टर्मिनल वेलोसिटी आप पूछ रहे हैं आपसे। मैं सादिया आपका आंसर पढ़ता हूँ, टर्मिनल वेलोसिटी का आंसर हमारे पास 36 आ जाएगा। सादिया ने क्या आंसर लिखा है, एट स्टार्ट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल गलत। स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन 9.81 होती है। सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल गलत। तो द स्पीड इंक्रीजेज, स्पीड इंक्रीज, एयर रेजिस्टेंस इंक्रीज, ये करेक्ट पार्ट है आपका। ठीक है, उसके बाद एंड व्हेन द वेट, तो सादी आपने तो लिख दिया कि स्टार्ट में भी जीरो था बाद में भी जीरो था, आपको तो मैं 0 मार्क्स दूंगा, जितना आपने जीरो लिखा हुआ है अपने उसमें आंसर में, मैं आपको भी जीरो ही देता हूँ फिर। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। सर अगर आपकी सारी वर्कशीट कर लें तो टॉपिकल करने की ज़रूरत है, तो किडो माई वर्कशीट्स आर टॉपिकल।
मेरे ख्याल से 70 MCQs हैं, वो भी आपके पास पास पेपर है। ये भी पास पेपर है। कितने हुए इसमें मुझे नहीं पता कितने क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है, दीज आर ऑल पास पेपर्स। मैं कौन सा खुद से पेपर खुद बना के आप लोगों को करवाता हूँ। मैं भी तो आपको पास पेपर ही करवाता हूँ। ठीक है। तो गाइज वी आर डन विद 7 क्वेश्चन। अब थोड़ी गपशप लगाएंगे एंड देन विल कंटिन्यू, ठीक है। इन दिस मीन टाइम, अभी जब तक मुझे अम्मी आवाज़ नहीं देती कि खाना बन गया, ठीक है, तो तब तक हम लोग क्लास लेंगे। पता नहीं बन क्या रहा है, मेरी अम्मी ने आज कहा था क्या बना रही थी। खैर रैंडम, बट हाँ जब तक खाने की आवाज़ नहीं आती ना गाइज के रोटी खुल गई है आ जाओ, तब तक गाइज आई एम गोना टीच। मैडम 5 मिनट। हाउ लॉन्ग इज दिस मैक्स। अच्छा क्वेश्चन पूछने साथ ही चले गए हैं स्टूडेंट जी। सर हमारे घर बिरयानी पकेगी माशाल्लाह। हाउ मैनी थ्योरी क्वेश्चन आर सपोज टू बी डन पर चैप्टर? 15। सर ये आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे? कर दूंगा। आई एम गोना अपलोड दिस एंड आई एम आल्सो गोना अपलोड दोज टू। मैंने वो अपलोड की हुई हैं, क्या कहते हैं, एमसीक्यूज वाली वीडियोस, तो आप एक साथ देखें ना। सर व्हाट डू यू थिंक इज द हार्डेस्ट टॉपिक इन एएस? अच्छा मजे की बात है गाइस, हैव यू गाइस स्टडीड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव यू गाइस स्टडीड वेव्स अभी तक? अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी आपने मुश्किल पढ़ी है ना, तो अभी दिस इज नॉट द मुश्किल पार्ट। अभी जो रिमेनिंग चैप्टर्स है ना, वो मुश्किल है। ठीक है। सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन इज मुश्किल। बट गाइज एक चीज़ है कि आप लोगों ने अगर मेरे साथ सुपरपोजिशन पढ़ी ना, मेरा जो फेवरेट टॉपिक है ना पढ़ाने का वो सुपरपोजिशन है। बिलीव मी, वेव्स तो इजी है। वेव्स एंड सुपरपोजिशन ना दो टॉपिक्स है, मतलब एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं। बट यू गाइज विल रियलाइज कि एएस की जो अब आपको मुश्किल फील होगी ना गाइज इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स, फिर आप लोग कि वो कहते हैं ना बेख निकलेगी। नहीं सुपरपोजिशन मजे का टॉपिक है। इट इज़ अ फन टॉपिक। सही है अलमास। डिफॉर्मेशन शुड बी बाय द वे, मैंने भी अभी अभी जो मैं अपने कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ उसमें मैंने भी अभी वेव्स एंड सुपरपोजिशन नहीं स्टार्ट की। वी आर स्टार्टिंग वेव्स एंड सुपरपोजिशन फ्रॉम मंडे। एंड देन उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में आपने डीसी सर्किट्स कर ली हैं? आप में से किसी ने नहीं किया अभी तक ये चीज़ें मेरे ख्याल से। हाँ। विशाल आप किस टीचर से पढ़ रहे हैं? आप खुद पढ़ रहे हैं? आप तो प्राइवेट नहीं थे मेरे ख्याल से। क्या अभी प्राइवेट इसलिए ना आपकी स्पीड तेज़ है। ये बाकियों को लग पता जाएगा। ये बाकी जो मेरे शहजादे हैं ना, अभी माशाल्लाह जब इनको वेव्स एंड सुपर पोजिशन पढ़ाया जाएगा, जब इनको बेख वो निकलेंगी ना चीखे, और उसके बाद जब इलेक्ट्रिसिटी एंड डीसी सर्किट्स, हो गाइस वो तो बहुत मजे का है। डीसी सर्किट्स के जब क्वेश्चन आएंगे ना, अच्छा मैं अभी तक बता रहा हूँ ना, आपको अभी तक लग रहा है कि ग्रेड एक्चुअली उन सब्जेक्ट्स उन टॉपिक्स की वजह से नहीं आता, ये तो इजी वाले है अभी। मतलब जो सबसे मुश्किल है ना, तो दैट इज काइनेमेटिक्स, सुपरपोजिशन एंड डीसी सर्किट्स। 11 चैप्टर्स हमारे, ये 3 चैप्टर सबसे मुश्किल है। एंड व्हाट डिड यू गाइस स्कोर इन योर मिड टर्म्स बाय द वे? विशाल उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दोज आर डिफिकल्ट, स्पेशली उनके एमसीक्यूज। माशाल्लाह माशाल्लाह सबके डी आए हैं। ओ मैं सके में कुमां, मेरे शहजादे बच्चों पे इतना प्यारा रिजल्ट। इतना प्यारा रिजल्ट। घर से निकाला नहीं गया आप लोग? खैर गाइस मेरे अपने भाई का डी है, ठीक है। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। मेरा मतलब मैं फिजिक्स टीचर, ठीक है। तो मेरे अपने भाई का डी आया है फिजिक्स में। नहीं वो मेरे ख्याल से उसमें यू है, मैथ में यू है। फिजिक्स में मेरे भाई का डी है। अम्मा घर पर नहीं थी। बस गाइस हो जाएगा, अल्लाह खैर करेगा। मैथ्स यू माशाल्लाह, मैं सके में कुआ, इतने प्यारे मेरे शहजादे हैं। एंड आर यू गाइस गिवन गिविंग मैकेनिक्स, और आर यू गाइस गिवन स्टार्ट्स का पेपर मैथ के साथ? S1 इज वेरी इजी। M1 गाइस, M1 बहुत मुश्किल है। M1 पढ़ा है अभी तक आप लोगों ने? गाइस M1 आपकी जो बेख निकालेगा, बिलीव मी। मतलब उसमें गाइस आपको पक्का रोना आएगा, पक्का रोना आएगा, आई कैन गारंटी यू। बट आपको पता है अगर आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है तो आपसे मैकेनिक्स का पेपर हो जाता है, ये बात याद रखें। सबकी फील्डिंग है, अगले 2 मंथ्स में आप लोगों को एक्चुअली पता लगेगा कितना मुश्किल है ए लेवल्स। बिलीव मी अभी तक आप लोगों ने ए लेवल्स का ना वो नहीं लिया। लास्ट ईयर गाइस आई टुक अ क्लास काइनेमेटिक्स की ना, मुझे याद पड़ता है, अभी से 2 महीने बाद की बात है, एंड ईजिली 100 स्टूडेंट्स होते थे, मैसेज आ रहे थे सर प्लीज लेट अस इन द क्लास। 100 पूरे हो जाते थे।
और जब मैंने सुपर पोजिशन का गैस एक बार क्लास करवाई थी, आई आई बिलीव 180 या 90 फ्री का सेशन था, उसमें स्टूडेंट्स थे सुपर पोजिशन की क्लास में सिर्फ। फर्दर मैथ्स का मन करना था, मैंने 3 बार उसका, बड़े मजे का है। मैंने चूंकि व्हेन आई वाज इन माय ए लेवल्स ना गाइस, मैंने अपने एएस में वो कॉम्पोजिट दिया था, मैथ कॉम्पोजिट दिया था ना। तो आई स्टडीड मैथ ऑन माई ओन। वैसे मैं सारे सब्जेक्ट्स खुद ही पढ़ता था टू बी ऑनेस्ट। स्कूल तो मैं सिर्फ मज़े करने जाता था, मतलब जनवन मेरी तो अभी भी आइडियोलॉजी है, मैं अपने स्टूडेंट्स को जो थोड़े से भी सही है ना, इंसान के बच्चे वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, तो मैं उनको यही कहता हूँ, स्कूल मज़े के लिए होता है, पढ़ना आपने खुद है हमेशा। और आई आई यूज्ड टू डू दिस, आई यूज्ड टू गो एंड एंजॉय इन स्कूल। नहीं आयशा, ये ज़रा मुश्किल हो जाता है, स्कूल्स करते हैं आई नो, या आप एलजीएस में होंगी, बट कॉम्पोजिट इज़ अ बैड आइडिया अकॉर्डिंग टू मी। इट इज़ वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि उनकी फिर डिस्टिंक्शन आती हैं उसकी वजह से, बट नहीं होता गाइस, बिलीव मी। अच्छा उसके बाद हाँ गाइस, सजेस्ट सम गुड, वो कहते हैं सीरीज नेटफ्लिक्स की, आई एक्चुअली नीड सम सजेशंस। अ फ्रेंड सजेस्टेड के वॉच फ्रेंड्स, बट मेरा फ्रेंड्स देखने का दिल ही नहीं करता फॉर सम रीज़न ना, मतलब। तो मैं इधर नोट करता हूँ, उधर डेक्स्टर एक, आई एम नाम से ना, मतलब मुझे लाइट कलर, हाउ डू एक्सप्लेन दैट, वॉर्म, उसकी जो वो ना वॉर्म सी हो, जो वीडियोग्राफी है, इट शुड नॉट बी दैट इनसेन लेवल डार्क और बिल्कुल ही अंधेरा अंधेरा। डेक्स्टर देख सकते हैं। ओ लेवल प्राइस ऑफ केक, माशाल्लाह शहजादे, होगी आपका ओ लेवल। गाइस मुझे अच्छे वाले कोई सजेस्ट करें, सम नाइस वंस। प्रिजन ब्रेक, फ्रॉम, फ्रॉम की फुल फॉर्म की है, और कोई? अच्छा बाय द वे, मुझे मूवीज भी कह सकते हैं, डार्क नहीं, मुझे मैंने उसका थोड़ा देखा था, मुझे वो अच्छा ही नहीं लगा। मैं वो क्या कह रहा हूँ ना, मुझे बहुत वो वाले चाहिए जिसमें थोड़ा फन हो थोड़ा सा, या मुझे वो वाले बहुत पसंद है, व्हाट डू यू कॉल, व्हाट डू यू कॉल दैट, साईफाई, साईफाई। द सेडक्शन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़म्बिन व अतूबु इलैह। वॉच द 100। अच्छा, व्हेन द स्टार्स, 100 देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, दी 100 मूवी का नाम है, दी भी आता है, दी 100। व्हेन द स्टार्स गॉसिप, व्हेन द स्टार्स, इसको मेरी भी आप लोग ना, मतलब वो कहते हैं ना, रूल क्या था उसका, कहते हैं थर्ड लॉ क्या था, एक्शन रिएक्शन। मैं आपको पढ़ाऊँ विच इज़ द एक्शन रिएक्शन में, आप मुझे अच्छे अच्छे वो दें। सर पता चले द ऑफिस, ऑफिस मैंने देखा हुआ है, मैंने द ऑफिस देखा हुआ है, मैंने हाउ आई मेट योर मॉम देखा हुआ है, वो मदर वाला वो आधा देखा था, अब उसको छोड़ दिया। फिर मैंने ब्रुकलिन 99 देखा हुआ है, मैंने सूट्स देखा हुआ है, मैंने मैंने और भी बहुत देखे हुए हैं। मैंने वाइकिंग्स देखा हुआ है, द लास्ट किंगडम देखा हुआ है, मैंने फ्रेंड्स, मैंने उसके 3 सीज़न देखे थे, मुझे इतना मज़ा नहीं आया। ओपन आइवर बकवास फिल्म है, ठीक है, वेरी बोरिंग। बस इट इज़ सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है उसकी, बट उसके अलावा अम्ब्रेला एकेडमी मैंने देखी हुई है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, ठीक है। मैं वो अम्मी और बहन देखती थी उसके साथ, तो खाने के साथ देखते थे हम लोग, ठीक है। हम्म। अच्छा, द शैडो हंटर्स, मैंने ख्याल से मैंने शैडो हंटर्स भी देखी हुई है। मैंने द गर्ल अक्रॉस द टाउन भी देखी हुई है, मैंने मैंने बहुत देखे हुए हैं यार। डैम गाइस, मैंने बहुत टाइम ज़ाया किया, आई जस्ट रियलाइज्ड। ब्लैक मिरर नहीं देखा हुआ। गाइस कोई अच्छे वाले जो ज़रा ज़रा फनी से हो, या डेविल वेयर्स प्राडा। ब्लैक मिरर, हैरी पॉटर देखे मैंने, हैरी पॉटर रिसेंटली देखी थी मैंने, द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया फिर से देखी थी मैंने, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन फिर से देखी थी मैंने, कंग फू की सारी मूवीज़ फिर से देखी थी मैंने, पर्सी जैक्सन वाली भी, पर्सी जैक्सन द लाइटनिंग थी, पर्सी जैक्सन, और वो जो दूसरी वाली सी वाली है वो भी फिर से देखी थी। मैंने फिर एक पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सारी की सारी फिर से देखी हैं। आई यूजली लाइक वॉच, मैं साल में ना एक बार सारी की सारी मूवीज़ फिर से देखता होता हूँ। दैट इज़ लाइक माई एवरी ईयर। तो रिसेंटली मेरे ख्याल से लास्ट मंथ या उससे लास्ट मंथ, मतलब मैंने दिसंबर और उसमें आई हैव, मतलब मेरी आदत है ना, मैं अक्टूबर के टाइम में जब फॉल आता है,
तो मैं वो करता हूँ, आई ऑलवेज वॉच हैरी पॉटर, मतलब हर साल मैं पूरी की सारी मूवीज एक फिर से देखता हूँ। देयर हैज बीन नो ग्रेटर सीरीज, एंड द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैंने देखी फिर सारी, वो बहुत मजे की थी। डैराइल डिक्सन देखें। हम्म। मूवी सजेस्ट करें, मूवीज अभी मैंने देखनी है, मैंने एवटार 1 और 2 फिर से देखी है, अभी 3 आ गई है ना, द फायर एंड ऐश वाली, वो भी मैंने देखनी है। उसमें अभी मैं देख रहा हूँ, उसका भी कैम प्रिंट आया हुआ है। वॉकिंग डेड फजूल सा है, मुझे तो खास नहीं पसंद। द न्यू हाउसमेड वाली मूवी आई बिलीव मैंने देखी हुई है, वॉज दिस, ये वो नेटफ्लिक्स पे लिमिटेड सीरीज था ना, लिमिटेड टाइम वाला, द न्यू हाउसमेड वाला। अच्छा न्यू मूवी है, देख लेते हैं। सिडनी स्वीनी, वाओ। मेट्रो सेड आई कैन वॉच ट्रांसफॉर्मर्स अगेन एज वेल। ठीक है। और क्या देखा जा सकता है? गुड न्यूज़। नहीं नहीं guys, पढ़ाने का मसला नहीं है, वो तो मैं पढ़ा, ब्रेकिंग बैड मुझे नहीं पसंद, आई नो इट्स वेरी गुड बट मुझे नहीं पसंद। मुझे बेटर कॉल सॉल नहीं पसंद, आई नो इट इज़ वेरी फेमस, इट इज़ वेरी गुड, मुझे नहीं पसंद। ठीक है। स्क्रीम भी बड़े फनी वाली नहीं है ये, वो फनी वाली है ना, फनी हॉरर जो है। द क्राउन, चलें ये भी देखी जा सकती है। इट देखी हुई है। अच्छा गाइस, हम लोग आज की ना पहली वाली क्लास इधर ख़त्म करते हैं, आप लोगों ने ज़रा उस पर रहना है अलर्ट पे।